Everybody wants a shortcut, but Mariam has been able to build her own system from Islamabad to working remotely for a Canadian based company to landing her dream marketing job in Dubai, all within 30 days of landing. और ये बिना किसी रेफरल स्पॉन्सर या वायरल पोस्ट के हुआ. So without any further ado, please welcome Mariam to the Still Loading podcast. Welcome Mariam. Thank you so much for having me. Always a pleasure. अच्छा देखो, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. हमारे पाकिस्तान और नॉट जस्ट पाकिस्तान बट द होल सब कॉन्टिनेंट ऑलवेज keeps thinking कि कैसे होगा. तो I think your podcast is going to be an answer to a lot of these questions. So let's keep it brutally honest and let's keep it, as informational as possible for people. Yeah. तो स्टार्टिंग एट द कोर, तुम्हारी जर्नी स्टार्ट होती है इस्लामाबाद से, फिर तुम Yeah. मलेशिया चली गई, फिर तुम वापस Yeah. आ गई. Then you Yeah. started working for a remote company in Canada और अब दुबई. शिफ्ट कैसे Yeah. प्लान किया था? Shift. I was trying to move to Dubai. It was not specifically Dubai. It was any country. I basically wanted to go to Malaysia, but I had this in the back of my mind that Dubai has a much more better job market than Malaysia because I have been to Malaysia. I did find a job there as well, but it didn't go out very well. उसमें ये हुआ था that I found the job. It took me a lot of time, but and a lot of effort. I was applying to 200 jobs a day. Very brutal, strictly. So people say हमें job पे responses नहीं आ रहे हैं, हम apply कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं. This is a process of refining each and everything from your CV to how you're messaging your employer to how you're going to how you're going to connect with people and where are you going to connect with people, which platforms, where is the sort of a market audience that you're looking for is sitting. So the thing is, Malaysia May, I was applying to a lot of jobs, and then I was interviewed 4 times for the same job, which I got on 22nd July, which was my birthday. I made a wish. I was just sitting on the couch and I just prayed to Allah Pak that what if I open my Gmail and I find out that there's an offer letter present in my Gmail. And I opened it up and it was there. And I was the happiest person on the planet that I have finally found a job and I am not going back without a job. So I gave it a challenge to me. There was no pressure from my family or anybody, but it was a challenge to me that I had an opportunity and I am here. So why not achieve it? Absolutely, absolutely. उसके बाद कमिंग बैक टू पाकिस्तान, Yeah. द कैनेडियन जॉब एंड So एवरीथिंग. after Malaysia, I came back to Pakistan with the hope that I will get the visa, the work permit to move to Malaysia, but the things didn't go that way. It was a startup, they lost their investor, and they shut down the whole marketing department. So I will give you a motivation at this end. When I heard my manager saying that we have to let all of the marketing department go, this was the second. I just took a deep breath and I got my laptop. While he was telling me that, I just started applying again. It's it is a part of life. You don't have to take a lot of stress and sit back and cry for a million days. Oh, the things didn't go your way. So उसमें आपको बस ये होता है अच्छा ठीक है ये हो गया it would be something जो मेरे लिए better होगा एक दरवाजा बंद हुआ है यू हैव टू हैव योर बिलीव फुली देयर कि एक दरवाजा बंद हुआ है तो अल्लाह पाक आपके लिए 100 और दरवाजे खोलते हैं सो ही टोल्ड मी दैट आई जस्ट स्टार्टेड going on the same journey applying 200 jobs a day और उसमें I was looking at every market कि मैं कहीं भी बस निकल जाऊं but it took me a lot of time. Uske baad, I had 2 to 3 jobs that I did in Islamabad. I was working 2 jobs in Islamabad at a time as well. Morning may on site, and in the evening, I was doing a remote job. One of which was the Canadian job that I cracked.
So that is a very good story. If you have enough time to, I have a lot of stories जो मैं आपको बता सकती नहीं नहीं, we हूँ. have So all the time, we have all the time, Mariam, and I would love if you could talk a bit more about, because again that is something which a lot of people aspire for as well कि यार पाकिस्तान बैठ के रिमोट काम कैसे किया. So how did that role shape your confidence and craft, and I'd love to learn more about that. so I will make it very clear. I did not have a LinkedIn premium account. I have always applied on two jobs on LinkedIn. I've used Indeed very less in my life, but for LinkedIn, I have always applied through LinkedIn. There was no premium account, there was nothing. It was just a normal, simple account with the keywords that I was using in my bio, and I was targeting people, all the employers, all sort of jobs that were coming either on easy apply or I had to go to the website and apply over there. So let's move one step back and start where did I find this Canadian job? So it was a job. So I was working with an architectural firm in Pakistan. It was also a remote US job. So which I got from LinkedIn as well. And but that was an on-site job. Not in US, but we had a back office in Islamabad where I was going to the office. So I had that job for like 4 months, and uske baad I was working over there, but the atmosphere was not according to me. I am a creative person, and I want that creative leverage from the company to give me to work like I want to work, and how creativity should my creativity would come out when you would give me the leverage and space to work my way. But a lot of restrictions, a lot of norms, or the things that the boss wants, those are the things that don't come out every time. We do take your opinions. I will work how you want it to be. I will see your vision, but it has to be according to my knowledge. So if I'm not working according to my knowledge, I'm not fruitful for you, and it's not going to be fruitful for the company as well. So I worked in that job for like 4 months. उसके बाद I will tell you a very rough truth that I was fired. Why was I fired? We have all been there. We've all been there, Mariam. So it's fine. Okay, so why was I fired? I was fired because my boss wanted a platter, not a person who would only do SEO. He wanted an all-rounder, a person who would do the SEO, manage the website, put her hands in the coding as well, do the graphic designing as well, manage the social media as well. So everything they wanted everything. It wasn't in my contract. In Pakistan, they think that they have hired somebody in Pakistan, they can have the labor work, the donkey labor work from them. But I retaliated. I said, I'm not going to do the donkey work here. You have not asked me. It's not written in my contract that I am going to do the graphic designing, but I'm still doing it for you. I was doing the donkey work, even if I said I won't, but I was. So I he said that you have to make all of the graphics for the business, and you have to manage the social media as well. I said, this cannot be achieved. When you'll come to me for results, you'll ask me where are the results, and I will tell you it's not happening because I am not a high level graphic designer. I'm just an intermediate level of a graphic designer. I take time with posts, and if I am spending 5 hours of the day designing posts, how can you expect me to give you those results in SEO? And then you're asking me where are the conversions that are not going to happen. You have to define the roles that what is it's a full-time job for SEO. There are a lot of domains in SEO that we have to work on. पर ये काफी चीजें हमारे बॉसेस को या जो बाहर जाकर कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान में देते हैं कि आप चीप लेबर को 500-500 डॉलर में उठाएं और उनसे काम करवाएं, वो नहीं मिल पाता. ठीक है. So he said the HR called me one day and it was the last day of my probation, so I thought जॉब पक्की हो गई है तो yes. ठीक है. तो जैसे ही what happened? He called me down and I went and he said that we're not happy with your products.
progress. I knew it because when I said कि मैं graphics नहीं बनाऊंगी, my boss just cut me off. He wasn't talking to me, he was talking to everybody else, but उसने मुझे पूरे ignore पे डाल दिया था. तो मुझे समझ आ गई थी भाई अब ये जॉब नहीं होगी. तो वो जो लास्ट मंथ था, तो बस एक महीने वो अपना क्या कहते हैं नोटिस पीरियड फाइल की जो सर्व करना था वो सर्व किया. आई एंजॉयड अ लॉट. आई वाज अ पर्सन हु वुड टेक स्ट्रेस एंड स्टिल वर्क इन द नोटिस पीरियड, बट उस नोटिस पीरियड में आई एंजॉयड. आई सेड आई was working honestly for the man, but the man wanted much more things that weren't included in my contract. So it's okay. You have fired me. I'll find a new job. So the last day of my notice period, when it was the last day of my notice period, I was being interviewed by Ali Tahir, who was my senior manager in Ring Office Corporation. That's the remote job we're talking about. That was in Canada. So I was being interviewed by him, and the moment I stepped the foot in my house, my job was done. So I was the person who cried for a lot of times in that job that oh, there was something that got stuck with me कि मेरी हर जॉब 4 महीने बाद क्यों जा रही है. ठीक है, इज देयर अ फॉल्ट विद मी, मुझे काम करना नहीं आता, मेरे में स्किल नहीं है, क्या मसला है. बिकॉज ठीक 4 महीने बाद मेरी मलेशियन जॉब भी चली गई थी, उसके बाद ये जॉब आई, 4 महीने बाद ये चली गई. सो आई थॉट कि शायद मैं 4 महीने से ऊपर किसी के साथ काम नहीं कर सकती हूँ और मुझे वो निकाल देते हैं, शायद मुझ में कोई कमी है और मुझे काम करना नहीं आता. बट फॉर रिंग ऑफिस आई वर्क फॉर 2 years. So this was with me. It gives, it takes you back. It sticks with you in your mental conscience that शायद आप में कोई मसला है कि आपकी 4 महीने बाद जॉब चली जाती है, आपको काम करना नहीं आता है, या अभी आप उस लेवल ऑफ स्किल पे नहीं पहुंच पाए जो लोगों को चाहिए होता है. बट it's just your thinking. It's not that. In this world where you will find bad people, you will find good people as well, and you won't know कि वो कितना टाइम तक आपके साथ रहते हैं, how they're going to shape your career, how they're going to take you a long way ahead with them, and how it's going to shape your craft as well. So this is how. Okay, no, I have not answered your question till yet. We have gone too far in the stories. So the job for Ring Office that I found was again on LinkedIn. I will tell all my audience who's going to listen to this podcast. जॉब्स, पीपल से हमें जॉब्स नहीं मिलती हैं, हम अप्लाई करते हैं लिंक्डइन के ऊपर. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स कम टू मी एंड से कि हमें जॉब्स नहीं मिल रही, तुम्हें कैसे मिल जाती है, तुम बताओ. सो आई वाज कंफ्यूज्ड, व्हाई आर दे आस्किंग मी दिस क्वेश्चन. मैं तो कुछ खास कर भी नहीं रही हूँ, मेरा लिंक्डइन भी प्रीमियम नहीं है, मेरे पास I had 300 connections only on LinkedIn, okay, and which I was building. So I was shocked कि मुझसे ये सवाल होता है, तो इनके तो मुझसे ज्यादा connections हैं. So what are they doing? At the end, what crux I found out of that conversation was they were applying to just 2 to 5 jobs a day, while I was applying 200 jobs a day, madly sitting on LinkedIn, opening it up in the morning, और उसके बाद चाहे वो इजी अप्लाई पे आ रही हैं, चाहे वो आपके वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो रही हैं और वहां पे जाके आपको अप्लाई करना है. यू हैव टू अप्लाई, जस्ट गेट योर थिंग्स सॉर्टेड, मेक अ कवर लेटर, हैव अ रिफाइंड सीवी. उस वक्त हमें जाकर पता चला दैट देयर इज अ न्यू थिंग इन द मार्केट दैट्स एटीएस फ्रेंडली, जो कि इससे पहले तो था नहीं. हमारी सीवी बहुत शानदार होती थी, खूबसूरत, एक बड़ी सी पिक्चर लगी हुई है, एक टेम्पलेट है ब्लू कलर का या ग्रीन कलर का, और उसमें आपने रंग बिरंगा लिखा हुआ है. सो आई थॉट, आई डिड थिंक ऑफ इट कि मार्केटिंग की सीवी मार्केटिंग की जैसे लगनी चाहिए, कि थोड़ी टेम्पलेट बेस्ड हो. तो मेरी तो सीवी बिल्कुल ऐसी थी. एंड व्हेन आई सेंट दैट सीवी ओवरसीज, चाहे दुबई में फ्रेंड्स थे, कहीं भी थे, व्हाट इज दिस, इसको बोलो पहले अपनी सीवी तो ठीक करे. What is wrong with my CV? सब तो लिखा हुआ है उसके अंदर. Said this is not the way the CV is supposed to be. So, living in the third world country in Pakistan, we don't know things that are going up. They are going out in the other continents or in the other states, overseas. वहाँ पर it's a fast-paced market. So ATS was introduced there, but यहाँ पर पाकिस्तान में किसी को ATS का पता ही नहीं था कि ATS फ्रेंडली कोई चीज होती है.
तो मुझे जब पता चला कि यू हैव टू चेंज योर सीवी, इट शुड बी सिंपल एंड सारा कुछ उसमें वो ऑटोमेटिकली ट्रैक होगा आपकी एप्लीकेशन और रिजेक्ट भी इस वजह से हो जाएगी. सो ऑन व्हेन आई यूज्ड टू अप्लाई अ लॉट ऑफ जॉब्स ऑन लिंक्डइन, आई यूज्ड टू गेट द ईमेल्स फ्रॉम लिंक्डइन एज वेल. तो जब लिंक्डइन से ईमेल आती थी तो हमें पता होता था अनफॉर्चुनेटली यू हैव नॉट बीन सिलेक्टेड. बस उस पूरी ईमेल में ना सिर्फ मैं अनफॉर्चुनेटली का वर्ड ढूंढ रही होती थी कि ये कहाँ लिखा हुआ है. तो वो जब लिंक्डइन आपको ईमेल भेजे तो आप समझ जाएं कि बस आप वहीं से आपको रिजेक्ट कर दिया. बट the reason of the rejection is your CV is not ATS फ्रेंडली. आप वहां से इसलिए जो है रिजेक्ट हो गए, वहीं से आपको सिस्टम ने रिजेक्ट कर दिया. तो ये काफी अरसे बाद मुझे बात पता चली कि इस तरह होता है. सो my job for Ring Office, for Archivist, that was the company that I was working with before. Ye sub jobs, the Malaysian job, even I found it through LinkedIn, just LinkedIn. So I give the credit to LinkedIn under my jobs as well. LinkedIn helped me find this job. Thank you. Perfect, perfect, wonderful, wonderful. And I've worked with you. I've seen you come along a long way, mashallah. So yes, I do understand where you're coming from. अच्छा मुझे ये बताओ, तुम दुबई चली गई तो Yeah. you landed to Dubai day one. Mm. What was your mindset like? क्या सोच रही थी कि फ़ौरन कोई जॉब मिल जानी चाहिए, यू जस्ट लुकिंग टू सर्वाइव, looking to hustle? Because देखो, we all know that there are a lot of scams in Dubai. Like, Yeah. I have been part of the Dubai ecosystem for quite a long time, so I understand, what and kind of people you meet at times और क्या चल रहा होता है. So what was your mindset on Mariam in Dubai day one mindset? Explain. Day one. Okay, this mindset didn't start from day one. This was from Islamabad. जब मैं इस्लामाबाद में थी, I had a proper, you may say, मैंने पूरी तैयारी कर रखी थी, पूरी preparation के साथ I was going to be there. But let's move a step back from here as well. There's a story there कि मैं दुबई आना चाह रही थी, and like I told you that I was trying from 2 years. और फिर उसके बाद मैं मलेशिया भी जाना चाहती थी, बट थिंग्स टर्न्ड आउट थोड़ा सा फेट और वो सारा कुछ हुआ. और उसके बाद था कि ओके, one story that I haven't told yet, that when I was finding the jobs in Dubai, I was hiding it from my senior manager who used to come to Dubai every 6 months, and I was saying मैंने अली भाई को ये बात नहीं बतानी कि मैं दुबई जा रही हूँ. I don't know. And this was the biggest mistake I did because he is the only person who got me here. और मुझे था कि वो मसला हो जाएगा, वो बोलेंगे तुम इस जॉब के साथ फिर दूसरी जॉब देख रही हो, तुम फिर मूव करना चाह रही हो. That was all in my mind, which was not true. So जितना भी I thank you for bringing me here to getting me where I wanted to be. I still remember the line you said, I will set you up for future. The rest is in your hand. Fly. Fly जहाँ जितना ऊंचा उड़ सकती हो उड़ो उसके बाद. So people, if I'm sitting here, it's all because of him. नहीं नहीं, He is the humble one. humble humble about that, Mariam, but it's sure hard work. देखो, हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं किसी के लिए, but frankly, truly humble, but it's sure hard work. The hard work is secondary. The first thing is the support. तो अगर आपका support नहीं होता, I wouldn't have been here. कभी भी नहीं. You were the one, even though he booked my tickets, he booked the place I was going to stay, he managed all of his contacts to find me a job. Even though that didn't turn out, it is another story. But he found his partner who was working in Dubai already. He asked him for my visa because जब मैं आई थी, it was a time जब साफ you open up TikTok and every other news is पाकिस्तानियों को वीजा नहीं मिल रहे हैं. Till date, my family, my far along family is also shooketh. They are shooked कि कैसे आपको कैसे जॉब मिल गई. उस वक्त तो किसी को वीजा ही नहीं मिल रहा था. वो बिल्कुल शॉक हो चुके हैं कि मरियम का वीजा कैसे लग गया. सो देन आई यूज्ड टू फॉलो दिस मीम के ये बातें बताई नहीं जाती. तो मैंने आई डिडंट टेल एनीबॉडी, नॉट इवन माय फ्रेंड्स, नॉट जो होते हैं आपके खानदान के लोग, किसी को दूर दूर तक नहीं पता था कि मैं दुबई जा रही हूँ.
So because होता है कि नजर लग जाएगी सारा कुछ. So these things are told at the end जब सब हो चुका होता है. So he is the man behind सब कुछ हो चुका है. ठीक है. तो मेरा वीजा अप्लाई होता है. मैंने एक दिन अली भाई को बताया कि आई एम प्लानिंग, मैं जाना चाहती हूँ. से जाना चाहती हूँ? तो मैं दुबई प्रो हूँ, मैं तुम्हें सब बता दूंगा कैसे होता है. तो ही वॉज द वन हु टोल्ड मी अबाउट द जॉब मार्केट, कि वहाँ पे कैसा है. एंड इफ यू आर गोइंग एज अ गर्ल इट्स सेफ, बट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग. आपको खुद को प्रोटेक्ट कैसे करना है स्कैम्स से, हर चीज से, और वहाँ कैसे रहना है. ठीक है. एज गर्ल्स आई नो हमारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा इस चीज पे एप्रीहेंसिव होते हैं कि बेटी को बाहर भेज रहे हैं अकेले, तो वहां पर कैसे रहेगी. बिकॉज एक पाकिस्तानी कल्चर है ना, दैट एवरीवेयर you're going either with your brother, either with your father. लेकिन एक अकेली लड़की का एक दूसरे शहर और दूसरे मुल्क में आके रहना इज which takes our parents aback, कि ये कैसे जाके सब कुछ करेगी. बट यू नो देर आर सोल्जर्स इन द फैमिली एज वेल जो अपने लिए लड़ते भी हैं और अपनी फैमिली के लिए भी लड़ते हैं कि वी हैव टू डू इट फॉर द फैमिली एंड फॉर आवरसेल्व्स एज वेल. तो आई मेड द डिसीजन, ही मेड इट पॉसिबल विथ एवरीथिंग, कि चलें अब आपको हम सेटअप करते हैं कि दुबई कैसे पहुंचेंगे. आई वॉज क्राइंग डेली, अली भाई वीजा नहीं हो रहा, अली भाई कैसे होगा ये, कुछ भी नहीं हो रहा. सो आई एम ट्रूली ब्लेस्ड. देर आर टू थिंग्स दैट आर इन माई लाइफ. वन इज आई एम ब्लेस्ड बाय अल्लाह पाक. ठीक है. दूसरा, आई एम ब्लेस्ड विद द पीपल, ही पुट्स पीपल इन माई लाइफ. जब चीजें होनी होती हैं वो इसी तरह होती हैं कि यू फाइंड पीपल who will support you in your journey. So I had the best two managers in Ring Office, Kamal Naqvi and Sir Ali. Both were super supportive कि आप बताओ आपको कोई मसला है, आपको क्या चीज चाहिए. So there's another talk in this society कि आप मर्दों से ज्यादा बात नहीं करनी है, उनसे आप बच के रहें थोड़ा सा. ठीक है. बट देर आर पीपल लाइक अली ताहिर, देर आर पीपल लाइक कमाल, जो आपको एंड तक अपना फैमिली मेंबर से भी ऊपर समझ के आपको सपोर्ट करेंगे कि आप कहाँ किस तरह पहुंच सकते हैं. सो डे वन या फिर उससे पहले भी आप ले लें, आई वॉज वॉचिंग अ लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोज कि कैसे पहुंचना है, क्या करना है, क्या क्या चीजें लेकर आनी है. सो दैट प्रिपरेशन यू हैव टू डू वे बिफोर यू आर गोइंग टू थिंक दैट इट्स गोइंग टू गेट रियल. क्योंकि हम तो प्लान करते हैं, लेकिन जब वो प्लानिंग रियलिटी की तरफ जाना शुरू होती है, आपको तब एक शॉक लगता है कि ओ, ये तो वाकई हो रहा है, मैंने तो सोचा था ये हो कैसे रहा है. तो आप अपनी पूरी प्लानिंग करें, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वो आप अटेस्ट करवाएं. पाकिस्तान में जो आखिरी आखिरी आपके लम्हात हैं वो आपको थोड़े टफ रहेंगे कि आपने मोफा से जाके अटेस्टेशन करानी है, आपने एचईसी से अटेस्टेशन करानी है. तो अपने डॉक्यूमेंट्स को आप अटेस्ट करवाएं. और उसके बाद उसके साथ साथ आप अटेस्टेशन तो करवा रहे हैं, आपने जॉब मार्केट को अप्लाई करना नहीं छोड़ना, आपने अप्लाई करते रहे ताकि इट्स गोइंग टू बी अ लक. कुछ लोगों को जॉब जो है वहां से बैठे बैठे मिल जाती है, और कुछ लोगों को जॉब जो है यहाँ आकर भी नहीं मिलती, कुछ महीनों बाद मिलती है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट्स कि आप कितना एफर्ट डाल रहे हैं और किस तरफ आप अपना एफर्ट डाल रहे हैं, और उसके बाद आपको जस्ट हैव फेथ, मिल जाएगी जॉब, कोई कोई इशू नहीं. Brilliant, very well said, and thanks a lot. Uh, I get kind of awkward जब मेरी कोई तारीफ करता है, but truly humble about this. अच्छा, मुझे ये बताओ कि you know this is a known fact कि जो यूएई की market है it's highly competitive. I Yes. wouldn't be naming any nationalities, but बहुत सी nationalities की वजह से बहुत सस्ती भी हो गई है market. तो Yeah. तुमने क्या किया? जो what did you do? Was it LinkedIn? Was it your outreach? What exactly did you do? So you were able to crack this within 30 days because as Mm. you have also mentioned कि I know a lot about Dubai. बहुत दफ़ा होता है कि लोग जब दुबई जाते हैं तो दे हैव टू रिजॉर्ट टू दोज menial जॉब्स. कोई सेल्स गर्ल बन जाती है स्टोर में जाकर, और पढ़े लिखे लोग, पढ़े Yeah. लिखे Yeah. बच्चे बेचारों को करना पड़ा होता है काम जस्ट बिकॉज Very दे true. वांट समथिंग. तो यू वर माशाल्लाह एबल टू लैंड समथिंग राइट अप योर नीश. क्या किया? मैंने क्या किया? सो द सेम रूटीन.
apply on LinkedIn, apply on Indeed, apply on Gulf and Naukri Gulf and every possible, प्लेटफॉर्म दैट्स प्रेजेंट ठीक है उसके ऊपर आप अपनी प्रोफाइल बनाएं अपनी सीवी को रिफाइन करते रहें डेली हर जॉब के लिहाज से आई डेंट नो दिस कि आपको आपकी सीवी हर जॉब के लिहाज से क्यूरेट करनी पड़ती है सो दिस वाज समथिंग दैट आई गॉट टू नो हियर कि अप्लाई तो मैं कर रही थी बट मुझे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था एंड इफ आई वाज नॉट गेटिंग द रिस्पॉन्स व्हाट वाज द रीजन सो द रीजन वाज दैट माय सीवी वाज गेटिंग रिजेक्टेड बिकॉज वो एक फॉर्मेट पे बनी हुई थी वो उस जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से नहीं थी सो आई हैड टू चेंज दैट एज वेल सो आई टेल यू अ क्रैक कोड कि ये किस तरह होता है ठीक है आई डेंट डू एनी मैजिक इट वाज जस्ट माय फेट दैट लैंडेड मी हियर बट इट वाज माय हार्ड वर्क दैट आई ओन कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी इसको हासिल करने के लिए so the thing is that day one in Dubai I was living in Barsha ठीक है तो Barsha is known for hustlers कि जो नए नए आते हैं वो Barsha में आके stay करते हैं and because it's cheaper for people as well आई वॉज लिविंग इन अ बेड स्पेस कोई शहाना कुछ किस्म का मुझे प्रोटोकॉल नहीं मिला जो हॉस्टल हमने अगोड़ा से बुक किया वो एक बेड स्पेस थी जहां पर आई वॉज लिविंग एंड उसके बाद उसकी स्टोरी हम आपको बाद में सुनाएंगे दैट इट वाज अ वेरी नाइस प्लेस ठीक है इवन दो इट वाज वेरी स्मॉल बट डिफरेंट आप डिफरेंट कल्चर से मिलते हैं यू गेट टू अंडरस्टैंड एंड इट हम्बल्स यू कि आपको उनको रिस्पेक्ट कैसे करना है और उन वो भी आपको किस तरह रिस्पेक्ट करेंगे you come from a different place but you're sharing a space with people with different nationalities और वो आपको उनके साथ कैसे रहना है उनको रिस्पेक्ट कैसे करना है so that they respect your boundaries and your privacy as well हालांकि बेड स्पेस में if I talk about privacy it's a very different thing or a difficult thing कि आपको privacy मिलेगी नहीं मिलती बट यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल ऑफ अदर पीपल क्योंकि वहां पर कुछ लोग डिफरेंट शिफ्ट्स में काम कर रहे हैं कोई नाइट में काम कर रहा है कोई डे में काम कर रहा है सो इट्स कुड यू गिव मी अ सेकंड Way back life. ओके सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द कल्चर कि आपको डिफरेंट कल्चर्स और डिफरेंट नेशनैलिटीज के लोग यहाँ पर मिलेंगे सो माय फर्स्ट interaction was an Indian lady who became a friend later. She is a wonderful woman. So, all I want to say is that you will meet different cultures and different nationalities, and you will learn how to interact with them, how you have to respect them and their culture because हमारे कुछ एक mindset होता है that इस्लाम इज बीइंग यू में से एक ही तरीके से इस्लाम जो है वो सब प्रैक्टिस कर रहे होंगे बट आई गॉट टू नो हियर इन दुबई के हम जिस तरह वित्र पढ़ते थे दैट्स टोटली डिफरेंट यहाँ पर तो इट्स डिफरेंट उनका कल्चर इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अस और फिर उस चीज को एक्सेप्ट करना कि द वे दे आर डूइंग इज ऑल्सो अनदर वे वो गलत नहीं है एंड द वे वी आर डूइंग इज ऑल्सो अनदर वे ये भी गलत नहीं है ठीक है सो आई गॉट टू सी मैनी नेशनैलिटीज हु वर प्रैक्टिसिंग इस्लाम इन अ डिफरेंट वे और फिर उनके साथ बैठना उठना इट वाज फन ओवर देयर एज वेल बट कमिंग बैक टू द टॉपिक कि क्या मेरी रूटीन क्या थी आई यूज टू अप्लाई अ लॉट ऑफ जॉब्स ऑन लिंक्डइन एंड आई मेड आउट a plan on going to the networking events so there was an event named as MENA conference that was happening over here MMA MENA conference it was a marketing event where you will get to see some pioneers and go networking, find people from different job scales जो यहाँ पर आ रहे हैं to find new opportunities as well. थोड़ी networking के लिए collaboration etc. हर किस्म के mindset के साथ लोग आपको उस networking event पे मिलेंगे, which is सॉरी विच इज अ वेरी गुड थिंग आपको नेटवर्किंग यहाँ पर बहुत जरूरी है कि आप नेटवर्किंग करें नए लोगों से मिलें नए एक मार्केट को जाने हाउ द मार्केट वर्क्स सो आई वेंट टू अ कपल ऑफ मार्केटिंग इवेंट्स एज वेल टू सी कि यहाँ पर मार्केटिंग कैसे हो रही है विच आर द टूल्स दे आर यूजिंग I saw that the companies were leveraging AI as well for marketing और वो कौन से tools use करते हैं for marketing so it was a very good insight into the market कि हो क्या रहा है कैसे चीजें चल रही हैं
So yes, you have to go on networking events, refine your CV, make a good cover letter, have your portfolio with you, क्योंकि आपका portfolio होना is very important. Nobody is going to understand कि आपने CV में जो काम किया है वो क्या है, unless they talk to you. So having this in your mindset कि लोग आपसे बात करेंगे, आपसे पूछेंगे ओ आपने क्या किया, no, nobody has time to ask you कि आपने काम क्या किया है या कैसे किया है. So you on the first hand you have to show एक पूरा आपका जो है ना प्रोफाइल should be ready. This is me, this is Mariam, this is what I've done and this is my work. Please look at my work. ठीक है. तो जब आप उनको दिखाएंगे कि this is your work that you have done, उसके उसमें से भी कुछ चांसेस होंगे लोग आपका काम पसंद करेंगे और आपको रीच आउट करेंगे. ओके वी डिड लाइक योर वर्क. Otherwise it's a fast paced market. Nobody has no time to see or to dig in कि आप के पास क्या स्किल है. आपको उस क्राउड में से देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर लैंडिंग डेली ऑन अ डेली बेसिस इन दुबई टू फाइंड जॉब. वो सब यही करने आए हैं. लोग वीजा पर आते हैं. एवरीबडी नोस द ड्रिल कि आप आ रहे हो, उसके बाद आपने यहाँ पर आके अप्लाई करना है. अपना लक, इट्स अ फुल गैम्बल. आपने बस अपना लक ट्राई करना है कि किस तरह जॉब मिलती है. बट इन दैट क्राउड हाउ विल यू स्टैंड आउट? क्योंकि सभी बाकी सब भी तो यही सब करने आए हैं. वो भी जॉब ढूंढने आए हैं, आप भी जॉब ढूंढने आए हैं. तो उस क्राउड में स्टैंड आउट कैसे करना है, अपने आप को कैसे रिक्रूटर के सामने प्रेजेंट करना है दैट दिस इज मी एंड दिस इज द वर्क दैट आई हैव डन एंड दीज आर माय स्किल्स. सो वो आपको जस्ट लाइक देयर इज अ थिंग दैट वी से मी एंड सरली कि खुद को बेचना पड़ेगा. तो हम कहते हैं कि हमने टाइम वेस्ट कर दिया है, हमने अपने आप को उस तरह सेल नहीं किया. So the selling that we are talking about, that we didn't put ourselves out there in the market in front of people कि this is us, we have a lot of skills, please look at us, we know work. तो ये चीज is important. इट्स अ डिजिटल एरा. हर किसी को आप देखें वो इंस्टाग्राम पर है, वो टिकटॉक पर है. सो दे हैव अ सोशल आइडेंटिटी. यहाँ पर इफ यू आर नॉट सोशली अवेलेबल, आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, आप अपने आप को उस तरह प्रेजेंट नहीं कर रहे हो, नोबडी इज गोइंग टू लुक एट यू. इट्स सिंपल, इट्स एज सिंपल एज दैट. ओके. सो the other thing apart from all of this that I did was I found out, this is a hack that I'm going to give you today. So I was searching for all the recruiters based in Dubai. तो जितने भी रिक्रूटर्स मुझे लिंक्डइन पे फिल्टर लगाकर मैंने सर्च किया इन डिफरेंट फील्ड्स, आई वाज नॉट स्पेसिफिकली लुकिंग फॉर अ डिफरेंट वन सॉर्ट ऑफ अ कंपनी. जो भी कंपनीज, जो भी डोमेन्स आ रही थी, उनके एचआरस, उनके टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट, वो हैशटैग्स लगा के मैंने फाइंड आउट करना शुरू किया. एंड आई वाज सेंडिंग देम कनेक्शंस. वन मोर थिंग, बिकॉज दुबई इज अ मार्केट जहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन है. तो उस कंपटीशन की तैयारी में द वन गुड थिंग दैट आई डिड बिफोर वाज मैंने लिंक्डइन प्रीमियम खरीद लिया था आने से पहले. तो आई गॉट लिंक्डइन प्रीमियम. आई केम विद फुल प्रेपरेशन कि मुझे जाकर वहां पे किस तरह जॉब्स अप्लाई करनी है. मैं पहले भी अप्लाई करी थी बट यहाँ आके थोड़ा सा वो कार्व होता गया कि किस तरह चेंज होती है चीज. तो I was sending because I had to send connection request to a lot many people. तो मैंने LinkedIn प्रीमियम खरीदा और फिर उसके बाद उसमें आप उनको ईमेल्स भेजते हैं जो जो आपको लगता है कि ओके दिस इज द जॉब दैट फिट्स माय स्किल सेट, मैं ये सारा कुछ कर सकता हूँ. आप उनको स्पेसिफिकली ईमेल भी भेजें. अदरवाइज आप उनसे कनेक्शन बनाएं. उनको आप एक ब्रीफ सा मैसेज, एवरीबडी यूजेस चैट जीपीटी, आप एक ब्रीफ सा मैसेज बनाएं और उस मैसेज पे यू टॉक अबाउट योरसेल्फ. Hi, this is Mariam. I've done this education, and from this university, I am currently in Dubai and I'm seeking a job opportunity. These are my skills. बस आप वो pointers में कुछ skills लिखते हैं कि ये skills हैं मेरे, and I'm looking for an opportunity. And I used to send this message out to all the recruiters. जैसे ही request accept होती थी मैं उन्हें message भेज देती थी. What this did was I became known to the people कि okay, she is finding a job. हर कोई आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा बट द रिस्पॉन्स ऑन दिस वाज रियली गुड कि मुझे आना शुरू हो गए थे जवाब. ओके समबडी वुड से कि हम नहीं देख रहे हैं इस वक्त इस रोल के लिए किसी को भी, बट वी विल रेफर इट टू यू टू समबडी.
you will one new thing that I found in all of this journey was I came across some career counselors, जो कि मुझे नहीं पता था ऐसे भी होता है, बिकॉज लिखा तो टैलेंट एक्विजिशन उनकी भी डेजिग्नेशन थी, but were career counselors the, in which I found one person. I now might have forgotten the name, but he was a very good person. uh, he counseled me कि आप किस तरह अप्लाई करो. उसने मुझे सीधा बोला, उसने मुझे इमरान खान की बात कोट की, उसने बोला कि घबराना नहीं है आपने, ठीक है. और उसके बाद उसने मुझे कहा कि आप जो हो बस अप्लाई करो, ठीक है. 4 किस्म की सीवीज बना लो, या एटलीस्ट 3 किस्म की सीवीज बना लो. एक आपकी मेन डोमेन, ठीक है, जो आप करते हो. एक थोड़ी सी डिफरेंट जो आपको थोड़ा कम काम आता है लेकिन उसके ऊपर भी सीवी बनाओ, और एक आप फिर और बना लो. वी विल सी. आप हर जॉब पे अप्लाई करो. अगर आपकी मेन डोमेन नहीं होती, आप थोड़ा सा और जॉब की तरफ मूव करना चाहते हो, अगर एंड पे कि आपको कुछ नहीं मिला, दैट्स द वर्स्ट केस सिनेरियो. सो व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान और एनी अदर कंट्री टू दुबई, आपने हर चीज की प्रेपरेशन करनी है. आपने अपना वर्स्ट केस सिनेरियो भी रेडी रखना है कि मैं आ तो रही हूँ, और इफ थिंग्स डोंट गो एज प्लान्ड, तो मेरा क्या प्लान है, मैं क्या करने वाली हूँ यहाँ पर. सो दैट आई डिड, कि आई वाज प्रिपेयर्ड विद माय वर्स्ट केस सिनेरियो एज वेल. Brilliantly put. In fact, it has also answered another of the questions which I wanted to ask and answer. बट एक चीज़ जो मेरे दिमाग में आ रही है ना अभी, वो ये है कि देखो, फियर ऑफ रिजेक्शन तो होता ही है कि या यार, स्पेशली बिकॉज आई डू नो हाउ मच मनी यू स्पेंड. तुमसे ज़्यादा पैनिक या नहीं होता था कि यार वो पैसे लग गए, कितने पैसे पैसे लग लगे. गए, पैसे लग गए, पैसे लग गए, क्या करें. तो ऐसा पॉइंट हुआ है कि यार यू फेल्ट कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा और वापस चले जाओ, या डिड यू बर्न ऑल द ब्रिजेस व्हेन यू वेंट टू दुबई एंड यू वर लाइक कि नहीं यार, जो मर्जी हो जाए, करना ही करना है. नहीं नहीं नहीं, दिस वाज वेरी क्लियर इन माय माइंड. वापस तो जाना ही नहीं था, मैं सारी कश्तियां जला कर आई हुई थी. सो द थिंग दैट आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस सेगमेंट एज वेल, कि जब मैं मलेशिया गई थी आई गेव माई सेल्फ अ चैलेंज कि मैं यहाँ तक आई हूँ, और मैं अगर एक जॉब नहीं अचीव कर सकती, सो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ऑल ऑफ माई स्किल्स. जो मैंने इतनी स्किल्स ओवर द टाइम एक्वायर की हैं, और अगर मैं उससे एक जॉब ही क्रैक नहीं कर सकती तो क्या फायदा है. So that was the same again here in Dubai, different location but the same game plan. कि आप skills acquire करें, skills are really important, ठीक है. Okay, one more good thing that I will tell you, not a good thing but a thing that I would like to tell you, कि आप यहाँ पर दुबई में आते हैं, ठीक है, या I don't know about the other countries but आप दुबई में आते हैं. So even if you have 7 years of experience, I had 7 years of experience in my field, but यहाँ पे आप जीरो हो. आप यहाँ आ रहे हो, they will say you are a fresher, you don't have the UAE experience. I said, I have 7 years of experience. He said, that's nothing. That's totally nothing. आपको जब तक UAE में on site आपने job नहीं की है, they will not count it as an experience. Even if it's a remote job in UAE, they will not count that as an experience. So the only experience that is counted is your on-site job in UAE. So आई थिंक मैंने सारा कुछ बता दिया कि मैंने क्या क्या किया था यहाँ तक पहुंचने के लिए. आई हैड बीन मैसेजिंग ऑल द रिक्रूटर्स. आई टुक काउंसलिंग सेशंस फ्रॉम द करियर काउंसलर्स एज वेल. और उसके बाद मुझे क्लैरिटी आना शुरू हुई थी दैट हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी. बट उस वक्त भी आपका माइंड वेग सिचुएशन में ही होता है कि आप अप्लाई तो कर रहे हैं, पर आपको नहीं पता होता कि आपको किस किस्म की जॉब मिलेगी, ठीक है, और मिलेगी भी या नहीं मिलेगी. एंड ऑन द वे, ऑन द पाथ टू योर डेस्टिनेशन, आपकी जो भी जर्नी है, आपको हर किस्म के लोग मिलेंगे. सो आई विल गिव यू अ हेड्स अप बिफोर हैंड कि दुबई में हर पहला बंदा जो आपको मिलेगा, ठीक है, वो आपको स्कैम करने के लिए ही मिलेगा. दे वुड, एवरीबडी इज हियर टू मेक मनी, ठीक है. दिस इज ब्रूटली ट्रूथ. कि लोग कहते हैं नहीं, दे आर गुड पीपल एज वेल. यस, देर आर गुड पीपल्स, यू हैव टू हैव योर फेथ ऑन द राइट प्लेस. बट ठीक है, जहां आपको अली ताहिर जैसे लोग मिलेंगे, वहां आपको कुछ करप्ट स्कैमर्स भी मिलेंगे जो आपको स्कैम करने की कोशिश करेंगे. बिकॉज एंड इफ दे नो यू हैव मनी इन योर पॉकेट, वो इतनी सी चीज को इतना बड़ा कर देंगे कि ओ दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड. बिकॉज हम एक माइंडसेट के साथ आते हैं कि वी हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी
टू बी हियर, और उसके बाद आप कहते हैं कि पैसे तो जा ही रहे हैं, अब कुछ भी करके जॉब मिल जाए। सो द थिंग दैट ही टॉक्ड अबाउट वाज कि लड़कियां जो हैं वो और जॉब्स में चली जाती हैं, सेल्स में चली जाएंगी। यू विल सी स्कैमिंग एट अ लेवल के लोग आपका पासपोर्ट रख लेंगे। ठीक है, there are jobs that will not give you the work permit but take work from you for 2 to 3 months। आपका विजिट वीजा का सारा टाइम वो खा जाते हैं कि हम जो है आपका काम देखेंगे। हम अगर आपके वीजा के ऊपर इतने पैसे इन्वेस्ट करने वाले हैं तो हमें पता होना चाहिए कि आप भागोगे नहीं और आपको काम आता है, विच इज अ स्कैम। ठीक है, यू डोंट हैव टू गिव एनी मनी टू एनी बडी टू फाइंड अ जॉब। ठीक है, जॉब पोर्टल सिंपल है, आप लिंक्डइन देखो, आप इंडीड के ऊपर देखो। आपने सिर्फ एक प्रॉपर पोर्टल्स के ऊपर ही अप्लाई करना है। आपने अ, या तो नेटवर्किंग के थ्रू आपको जॉब मिल सकती है या इन पोर्टल्स के थ्रू। इसके अलावा इफ एनीबडी इज आस्किंग यू कि आप हमें पैसे दो और हम आपकी जॉब लगवा देंगे, इट्स अ स्कैम। वो जॉब आपको कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, या फिर कोई आपको कहे दैट वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू द वर्क परमिट, आप अपना वीजा खुद अरेंज करके आ जाएं तो हम आपको जॉब दे देंगे। That's also another thing. That is also so wrong at so many levels। ठीक है, जिसके पास पैसे हैं वो तो कर सकता है, जिसके पास नहीं है वो क्या करने वाला है? वो फिर वो थोड़े थोड़े पैसे करके वो उनको देना स्टार्ट करता है। ओके ओके, मैं अपना वीजा कर दूंगा, आप प्लीज मुझे जॉब दे दो। आई हैव सीन पीपल क्राइंग फुल ऑफ टीयर्स। ठीक है, आंखें भरी हुई हैं, लाल हुई हुई हैं, स्ट्रेस के ओ जॉब नहीं मिल रही। तो आई हैव सीन ऑल ऑफ दिस सिचुएशंस हियर कि लोग आ जाते हैं प्लानिंग के बगैर आते हैं। आई हैव सीन, मेरे सामने बैठ के रो रहे होते थे कि जॉब नहीं मिल रही, हर चीज अप्लाई कर लिया, एंड इवन टू फाइंड दैट जॉब दे वर गोइंग टू रासल खैमा, कि हमें रासल खैमा में जॉब मिल जाए, हमें शारजा में जॉब मिल जाए, हमें अजमान में जॉब मिल जाए। You have landed in Dubai. Dubai has a lot of opportunities to offer you. You're just not going the right way। ठीक है, और जब आप उस डायरेक्शन की तरफ नहीं जा रहे हो तो आप रिजॉर्ट कर रहे हो किन अपॉर्चुनिटीज के ऊपर जो बहुत दूर है। रासल खामा इज वेरी वेरी फार फ्रॉम हियर। आप बहुत दूर अब लोगों को आप देखें कि वो इस कदर इस लेवल तक चले जाते हैं कि भाई एक जॉब के लिए हम कुछ भी कर जाएंगे, और वो जॉब आपको क्या पे कर रही है? 2000, 3000, दैट्स इट। दिस इज बेयर मिनिमम, ये लेबर सैलरी है। ठीक है, जो आप एक स्किल्ड एम्प्लॉय को देना चाह रहे हैं। सो स्कैम हर लेवल पे आपको मिलेगा। यू जस्ट हैव टू बी बिवेयर ऑफ ऑल ऑफ दिस। ठीक है, आपने किसी भी स्कैम के अंदर नहीं आना है। आपने सिर्फ पोर्टल्स के थ्रू अप्लाई करना है, और आपने अगर कोई गुड नोन रेफरेंस है आपके पास, उसके थ्रू अगर आपको कोई जॉब मिल सकती है, दैट्स फाइन। ठीक है, पीपल टॉक अबाउट वास्ता अ लॉट ओवर हियर कि वास्ता इज अनदर थिंग जो रेफरेंस बेस्ड जॉब होती है। ठीक है, दैट इज ट्रू। ठीक है, वास्ता के थ्रू आपकी जॉब होती है, मैं ये नहीं कहूंगी इट्स समवॉट ट्रू, इट्स ट्रू, होती है। लेकिन स्किल बेस्ड जॉब्स भी होती हैं। So not everybody is hiring through the reference. People are also hiring through the skills, through the portals। They are see, जब एक जॉब एप्लीकेशन उन्होंने वहां जॉब लगाई है, so obviously they're looking for somebody। They're not going to hire from the Vasta as well। So I will tell you one thing, when I came over here, मेरे आने से पहले I was interviewed by Bayouth, and I got to the last level। Bayouth is a very huge company in Dubai, and I was interviewed till the last level। मैंने assignment की and they loved my work, but I didn't get the job। Why didn't I not get the job? Because पाकिस्तानी वीजा सिचुएशन। दे सेड कि हमारे पीआरओ से हमने बात की, एंड दे आर सेइंग कि पाकिस्तानियों का वीजा इस वक्त नहीं लग रहा। वी हैव गिवन देम ऑफर लेटर्स टू द एम्प्लॉयज एज वेल, एंड वी हैव टेकन देम बैक, बिकॉज उनका वीजा रिजेक्ट हो जाता है हर दफा। आई हैड हर्ड ऑल सॉर्ट ऑफ स्टोरीज, वीजाज नहीं लग रहे हैं, वर्क परमिट्स नहीं मिल रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही है। एंड व्हेन आई केम इट वाज रमजान। अनदर पर्क कि जी आप रमजान में आए हैं, काम स्लो हो जाता है, कुछ नहीं होगा। पीपल एवरीबडी विल टेल यू एवरी सॉर्ट ऑफ थिंग्स। मैंने भी हर चीज सुन ली थी कि भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता, रमजान आ गया। बिकॉज आई केम लाइक 10 days बैक अर्लियर फ्रॉम रमजान, उसके बाद रमजान स्टार्ट हो रहा था, तो मुझे तो था कि मेरा तो महीना जाया हो जाएगा, अब मैं क्या करूंगी? मतलब मैं रॉन्ग टाइम पे आ गई हूँ, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता।
आपने सिर्फ एफर्ट करनी है और कुछ भी नहीं करना आपने, ठीक है? सो यू विल क्रैक अ जॉब, डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट डू योर एफर्ट, दैट्स ऑल, दैट्स नीडेड फ्रॉम योर एंड। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। वाली छुट्टी है, मैंने मैंने बहुत टाइम लिया। जस्ट नहीं, वन नो स्मॉल क्वेश्चन, प्रॉब्लम। just one small question before we wrap this up. You have crossed the barrier, you're now in Dubai. What's your next ambition now? कोई गोल बनाया हुआ है या you just want to go with the flow for some time now? um For that question, I'm still thinking because I'm blessed to have find a job here in 30 days. So the story that I didn't tell you yet कि वो 30 days कैसे चले और किस तरह मुझे जॉब मिली और उस दौरान मुझे किस किस किस्म के लोग मिलने को मिले और फिर उसमें क्या क्या हुआ। सो दे आई टेल यू टू प्रॉब्लम स्टोरीज जो उसमें से बहुत हाईलाइटेड है और मैं सबको बताती हूँ कि I was being interviewed by a Pakistani man over the phone call for like 45 minutes जिसमें वो मुझे बता रहे थे कि it's going to be जो हमारा प्रोजेक्ट है वो गवर्नमेंट बेस्ड होगा, गवर्नमेंट के साथ एसोसिएटेड होगा, आपको 24 घंटे काम करना पड़ेगा। व्हाट? 24 घंटे काम करना पड़ेगा? व्हाट यू मीन बाय दैट? सो ही सेड या यू हैव टू बी अवेलेबल ऑल द टाइम और मैं I needed the job. I was just saying yes, yes, yes to everything. ठीक है, ये भी कर लेंगे, बस आप जॉब दे दो, like everybody is doing. तो that man, what he said to me still is with me. He said कि देखिए हम आपको आपके पास बहुत ज्यादा स्किल है जो एक इंटरमीडिएट लेवल का कोई नया बंदा यहाँ पर आता है इन दुबई उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता आपके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है बहुत ज्यादा स्किल है बट आपके साथ दो मसले हैं सर व्हाट दो मसले हैं एक कि आप पाकिस्तानी हैं दो कि आपको दुबई में आए हुए सिर्फ 9 दिन हुए हैं मेरी आंखें फट गई थी कि इसने मुझे बोला क्या है कि मैं पाकिस्तानी हूँ मुझे यहाँ आकर पता चला कि पाकिस्तानी होना एक कितनी बुरी बात है और लोग आपको मुंह पर जूता मारते हैं ये आप पाकिस्तानी हैं ठीक है और हम आपको जॉब नहीं दे सकते किसी भी सूरत और एंड द सेकंड थिंग ही सेड टू मी वाज कि देखें मैं आपको जॉब तो अगर देखें अभी आप असाइनमेंट भी करेंगी जॉब तो अगर दे दूंगा तो जो आपसे बात करेंगे ना सैलरी की तो हम आपको 3000 से 4000 के बीच में सैलरी दे देंगे प्लीज आप निगोशिएट मत कीजिएगा एंड आई वाज लाइक आपने जायदाद लिख ली है मेरे नाम पे कि मैं निगोशिएट नहीं करूं आपके साथ फॉर आप बेयर मिनिमम 3000 से 4000 आप मुझे दे रहे हो दैट्स अ लेबर सैलरी और उसमें आप मुझे कह रहे हो कि प्लीज निगोशिएट मत कीजिएगा सर ओके सो दैट वाज वन जो हुआ मेरे साथ यहाँ पर I found a lot of opportunities, but उसमें इस किस्म की opportunities भी आती हैं. So the one good thing that I had learned over the course of time in my life was कि जो पहली opportunity आए उसको सिर्फ पकड़ के नहीं बैठ जाना. आपको इसके अलावा भी बहुत सारी opportunities मिलेंगी. Just wait for the right one that suits you. आप सिर्फ अपना effort करते रहो. ये नहीं कि आपका टाइम खत्म हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा. कुछ भी नहीं होगा. वो होता है ना जब सब कुछ हो जाए तो कुछ भी नहीं होता. तो आप इतनी टेंशन ना लें आप सिर्फ अपना एफर्ट करें the second man that I found was another one who I found from LinkedIn. He was also the mediator was a Pakistani and the partner was somebody in the US. ठीक है जिससे मेरी 45 minutes it was a recorded video call ठीक है जो मेरी उससे बात हुई थी और he wanted to talk to me on a video call ठीक है उसका वीडियो कैमरा बंद था because he was driving but मेरा वीडियो कैमरा ऑन था जिसमें every other question was just tell me two more skills about you. I am on the verge of hiring you. आप मुझे सिर्फ दो और बात बताएं कि मैं आपको हायर कर लूं ठीक है so he was speaking obviously in English so he was a foreigner who was talking to me that Mariam, I'm so amazed by your skills, but I just need two more things about you. I want to paint a clear picture of you. कि आप जो है कैसी दिखती हैं आपके अंदर क्या skills हैं I want to know each and everything. What cracked me up was that he asked me, Mariam, add me on your personal social media. I said, what? Personal social media? What for? तो what he said कि आप मुझे अपने पर्सनल सोशल मीडिया पे ऐड करो आई वांट टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट यू आई सेड नो आई हैड द चॉइस ऑफ सेइंग यस
बट आई अंडरस्टूड कि वो मेरे साथ क्या करना चाह रहा था, ठीक है। तो उसने मुझे कहा कि आप मुझे अपने पर्सनल सोशल मीडिया पे ऐड करें। मैंने उन्हें साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा देखें, आई हैव टू अकाउंट्स, आई हैव वन इज माय प्राइवेट अकाउंट, द अदर इज माय पब्लिक अकाउंट, जिसके ऊपर मैं अपना ट्रैवलिंग का सारा कंटेंट डालती हूँ। आई कैन ऐड यू देयर, यू कैन सी व्हाट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन आई एम। सो हिज पॉइंट वाज, नहीं नहीं, आप मुझे अपने पर्सनल सोशल मीडिया पे ऐड करें, बिकॉज समटाइम्स पीपल टॉक बैड अबाउट अस, तो वो डिफेमिंग के वो जुमरे में चला जाता है। तो हम वी आई वांट टू हैव अ नो कि आप क्या कर रहे हो वहां पर। आई सेड नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। एंड एज सुन एज आई सेड नो, ही सेड ओके फाइन, इफ यू आर नॉट गोइंग टू ऐड मी, दिस जॉब इज नॉट योर्स। बट फॉर 45 मिनट्स जो वो कॉल चली, आई कुड रियली अंडरस्टैंड कि वो मुझसे क्या कह रहे थे। ही सेड आई एम गोइंग टू मेक यू अ सुपरस्टार। तो मुझे सुपरस्टार नहीं बनना था। ही wanted to send me to the Virgin Islands, to France, to Paris, to every place, कि आप मेरे बेसिस पे जाके नेटवर्किंग करेंगी। आई एम गोइंग टू डंप थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स ऑन यू, सो आई हैव टू नो एवरीथिंग अबाउट यू। सो मुझे एंड पे समझ आ गया था, एंड पे नहीं, शुरू से ही खैर समझ आ गया था कि वो क्या करना चाह रहा है मेरे साथ। आई रिस्पेक्टफुली हेल्ड डाउन दैट कॉल, एंड देन आई कॉल्ड द पाकिस्तानी मीडिएटर। आई सेड आई डोंट थिंक यू नो योर पार्टनर दैट वेल, बट इस कॉल में मुझे समझ आ गई कि वो क्या करना चाह रहे हैं। सो पीपल, यू विल फाइंड पीपल लाइक दैट एज वेल। कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे बहुत सारे किस्से होंगे, आपको हर किस्म के इंसान मिलेंगे यहाँ पे। आपने बस अपना दामन बचा के चलना है। दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ स्टोरी। आपको इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट हैव अ क्लियर विजन, आप कहाँ लैंड करना चाहते हो, आप क्या चाहते हो अपनी जिंदगी के साथ। पीपल से दुबई इज अ सिन सिटी, मैंने अभी तक वो सिन सिटी नहीं देखी, ठीक है। वेरी ऑनेस्टली आई केम हियर एंड आई वांटेड, मुझे सबने यही बताया हुआ था कि दुबई इज अ सिन सिटी, ठीक है। और लोग वहां जाकर खराब हो जाते हैं, लड़कियां खराब हो जाती हैं। तो आई वॉज द वन, उल्टी खोपड़ी का इंसान, जिसने कहा कि सिन सिटी होगी, ठीक है, मैं इसकी रिलीजियस साइड एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। आई वॉज द वन हु वॉज गोइंग टू तरावी ईच एवरी डे, ठीक है। आई वॉज द वन हु वॉज एक्सप्लोरिंग मस्जिद्स। आई वॉज द वन हु वॉज एक्सप्लोरिंग अरेबिक कल्चर, ठीक है। इनके सूक्स पर जाना, दैट्स द लोकल मार्केट प्लेस। तो मैं सब देख रही थी। आई एम अ ट्रैवलर, आई लव टू ट्रैवल, ठीक है। और उस ट्रैवलिंग को मैं किसी भी इस चीज के साथ एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहती थी कि मेरा, आई एम एन नेचर लवर, और ये क्लब्स और ये, देखें, व्हेन पीपल से कि इट्स अ सिन सिटी, तो आप उन जगहों पे जा रहे हैं, तो आप उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। जब आप उधर जा ही नहीं रहे, यू विल नॉट गेट हिट बाय दैट कि इट्स अ सिन सिटी और इट्स वट एवर। आप गंदगी में नहीं घुसोगे, आप गंदे नहीं होगे। यू फाइंड योर वे। आप ने किस तरह अपने एम्बिशन को फॉलो करना है, और लिमिट्स में रह के फॉलो करना है। अपनी बाउंड्रीज को किसी को इन्वेड नहीं करने देना कि आप नहीं घुस सकते हो मेरी जिंदगी में इस तरीके से। एवरी अदर पर्सन विल कम टू यू, he'll come to you as कि लड़की है, वो नई लड़की आई है, बातें होंगी, घूमना फिरना होगा। give them a shut up call. I gave a shut up call to a lot of people कि आप आए हैं मुझसे बात करने, रिस्पेक्टफुली मैं बात नहीं करना चाहती। मैं यहाँ एक मकसद से आई हूँ, मेरा एक विजन है, मुझे वो गोल्स अचीव करने हैं। सो उन 30 डेज में आई वॉज लेजर फोकस्ड कि मुझे किस तरह अपनी जॉब क्रैक करनी है। देर वर टाइम्स वेयर आई वॉज वेरी लो, मेरा मोराल बिल्कुल सिफर पे जा चुका था कि मुझे नहीं मिलेगी जॉब शायद, मुझ में स्किल नहीं है, बट इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। बट उस सब में आई हैड माई मेंटोर्स विद मी, आई हैड दैट करियर काउंसलर वाज कॉलिंग मी फॉर फ्री। उसका कुछ भी नहीं था मुझसे गर्ज, वो मुझे फ्री में कॉल करके बस काउंसिल कर रहा था, मरियम आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो। सो अल्लाह पाक प्लेसेस पीपल इन योर लाइफ, बिकॉज आई न्यू मेरे पास कोई भी नहीं है, ठीक है, सपोर्ट के लिए। मैं मेरे आई डोंट कम फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली, नॉट इवन अ मॉडरेट फैमिली। आई एम अ पर्सन हु हैज बिल्ट हर सेल्फ, ठीक है। मैंने खुद कमाया है ऑल ओवर द टाइम, ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, ठीक है। मैं सेकेंड ईयर के बाद से जॉब करना स्टार्ट की। आई वॉज इंडिपेंडेंट, आई सेव्ड अप मनी for this, and I risked all of that money कि बस अब मैं आ गई हूँ, मेरे पास यही पैसे हैं, मैंने इसको आग भी नहीं लगानी, और मैंने जाया भी नहीं करने, और मैंने जॉब लेकर जानी है। इफ आई एम इन्वेस्टिंग ऑन माई सेल्फ, इफ आई एम रिस्किंग दिस अमाउंट ऑफ मनी जो मैंने इतने अरसे में इकट्ठी की है, और वो पैसा फिर मुझे मुझे उसका फ्रूट भी चाहिए, मुझे अपने एफर्ट को जाया नहीं करना। तो ये जो डिस्ट्रैक्शंस आपको मिलेंगी,
रास्ते में बहुत सारे लोग मिलेंगे. सो दे से इट्स अ वेरी फेमस कोट, और मे बी आई हर्ड इट टू मेनी टाइम्स, कि आपको रास्ते में भौंकने वाले कुत्ते बहुत सारे मिलेंगे. ठीक है, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज. अपनी जर्नी के रास्ते में बहुत सारे कुत्ते भौंकते हुए मिलेंगे, बट अगर आप उनको चुप कराने खड़े हो गए तो जर्नी तो फिर रह गई ना. तो उस जर्नी को फोकस रखना है. बहुत सारे पत्थर भी मिलेंगे, बहुत सारे अजीब लोग भी मिलेंगे. आपने अपना फोकस बिल्कुल नहीं छोड़ना. आपका गोल, आपका विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. सो ऑन सो द स्टोरी इज कि इस पूरा महीना मैंने बहुत सारी मेहनत की. रमजान भी आया, लोग आपको हर किस्म की स्टोरी सुनाएंगे, काम स्लो हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है. आई वॉज इंटरव्यूड फॉर वन जॉब ऑन साइट, बाकी सब रिमोट हो रहा था. इतने ज्यादा मेरे इंटरव्यूज भी नहीं हुए थे. At the end, the biggest scam that happened with me was कि मेरा 1 मंथ के वीजे पे मैं आई थी. ठीक है, और वो एक्सटेंड नहीं हो रहा था. ठीक है, मैंने जो वीजा की फी दी थी, आई गेस 1 मंथ का वीजा इज अराउंड 500 दिरहम्स, 650 दिरहम्स. आई पेड 1700 दिरहम्स फॉर द वीजा. ठीक है, सो इट्स 3x द अमाउंट फ्रॉम द ओरिजिनल प्राइस. और उसके बाद सिर्फ 1 महीना ही था मेरे पास. आई डेंट हैव अ चॉइस. मैं वर्स्ट केस सिनेरियो के साथ जब आई थी, तो मैंने वो अमाउंट भी रखी थी कि अगर खुदा न खास्ता मेरी जॉब नहीं होती, हर एफर्ट के बाद भी नहीं होती है, सो आई एम गोइंग टू गेट माई फ्रीलांसर वीजा एंड आई एम गोइंग टू फाइंड जॉब्स. ठीक है, एटलीस्ट मेरी रिहाइश का, मेरे वीजा का हो जाएगा. कोई मुझे उठा के बाहर नहीं फेंक देगा यहाँ से. तो फिर मैं, एक मेंटल पीस थोड़ा सा होगा, और मैं जॉब देख लूंगी कोई. ठीक है, मिल जाएगी मुझे इंशाल्लाह जॉब. आई कॉल्ड माई फ्रेंड, आई सेड मसला हो गया. तो जो मैंने किसी को भी नहीं बताया था कि मैं आई हूँ, सो आई हैड टू मेक दैट कॉल एंड आई सेड कि ये मसला हो गया है. ठीक है, सो हिज सिस्टर वाज द वन जो वीजास का काम करी थी यहाँ पे. सो ही सेड यू जस्ट टॉक टू माय सिस्टर. घर का बंदा है, कोई मसला हुआ तो घर में संभाल लेंगे ना, टेंशन लेने की क्या जरूरत है. तो आई टॉक्ड टू हर. शी इज एन अमेजिंग ऑनेस्ट पर्सन. ठीक है, जहां आपको बुरे लोग मिलेंगे, आपको अल्लाह मियाँ बचाएंगे भी. आपने अपना दीन ईमान बिल्कुल अपनी जगह पे रखना है. ठीक है, पुख्ता रखना है. आप अपने आपने नमाज पढ़नी नहीं छोड़नी, अपनी तस्बीहात पूरी रखें आप. ठीक है, हर चीज करें. ठीक है, सो जहां हम रिलीजियस होने की बात करते हैं, रिलीजियस को भी आप अपना रिलीजन भी फॉलो करें. हर चीज को रिलीजियसली करें, मेहनत भी करें, दुनिया और दीन दोनों को साथ साथ लेके चलें. सो आई सेड कि मुझे आप एक फाइनल बात बताएं, क्या करना चाहिए. कि आई शुड गो फॉर द फ्रीलांसर वीजा. शी सेड मरियम, मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू. आपके पास जॉब है इस वक्त? आई सेड नो. आई सेड, कहती आपके पास पैसे हैं फ्रीलांसर वीजा के? आई सेड कर लूंगी. ठीक है, शी सेड कि अगर तो जॉब ऑफर नहीं है, ठीक है, और इतनी मुश्किल आ गई है, तो सॉर्ट कर लो, फ्रीलांसर वीजा ले लो. ठीक है, और फ्रीलांसर वीजा अप्लाई करो, और उसके बाद जॉब मिल जाएगी इंशाल्लाह. आप जब एक चीज आपका कंफर्म हो जाएगा और एक टेंशन आपके सर से हट जाएगी, तो आप और जॉब्स अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर लोगे. सो दिस इज द थिंग इन दुबई एज वेल. इफ यू हैव योर ओन वीजा, यू गेट टू फाइंड बेटर अपॉर्चुनिटीज एज वेल. ठीक है, सो व्हेन द पर्सन इज ऑनेस्ट, तो वो आपका काम 5 मिनट में निकाल दो. आपके अलावा कोई आपकी बैटल्स आके फाइट नहीं करेगा. तो ऑल ऑफ दोज हर्डल्स वर असाइड. और सुबह मैं एक इंटरव्यू के लिए जाती हूँ, एंड आई फाइंड द जॉब. आई गॉट द जॉब. रात में मेरा वीजा लगता है, सुबह मेरी जॉब लग जाती है. दिस इज ऑल मैजिक, मिरेकल हो गया बस मेरे साथ. और मैंने बहुत सारी एफर्ट की, दैट पेड ऑफ. आई हैड माई फेथ रिस्टोर्ड इन मी, कि बस मेरा अल्लाह पाक पे पूरा यकीन था कि पूरी कोशिश करूंगी और बस हासिल कर लूंगी. और फिर वो हुआ बस. एज सून एज यू फाइंड योर जॉब एंड इट्स अ लेजिट जॉब, तो फिर आपके मसले खत्म हो जाते हैं. मेरे बॉस ने नहीं देखा कि लड़की के पास अपना वीजा है या नहीं है. द फर्स्ट थिंग ही सेड, ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स. Ijaz Nanda, shout out to Ijaz Nanda. I, if I would tag him somewhere in this podcast, I would love to. He is a man, he is a visionary man. ठीक है, he said कि whatever he said on that day about the job, he wrote it in my contract as well, कि ये पॉइंट्स हैं जो मैं आपके कॉन्ट्रैक्ट में भी मेंशन करूंगा. ठीक है, कि अगर आप कोई रिमोट जॉब कर रही हो, उसकी मैं आपको इजाजत दूंगा या नहीं दूंगा. आई साइंड अ 2 year कॉन्ट्रैक्ट विद दैट मैन.
आपको इस तरह की एक सिक्योर जॉब देखने की ज़रूरत है, जो आपको जॉब सिक्योरिटी दे। इसके अलावा भी मेरी एक जॉब अपॉर्च्युनिटी बनी थी, व्हिच वाज़ पेइंग मी मोर देन दिस एंड इट वाज़ अ रियली गुड जॉब जो मैं चाहती थी कि मुझे मिल जाए, बट द एचआर घोस्टेड मी फॉर 3 वीक्स। वो पूरे रमज़ान में उन्हें ढूँढती रही कि आई ट्राइड ईच एंड एवरीथिंग कि मुझे कहीं से वो मिल जाए बंदी। मैं इंटरव्यू देख रही थी एंड आई न्यू कि मैंने क्रैक कर लिया है ये जॉब और सारा कुछ हो गया है। आई कॉल्ड अली भाई एंड आई सेड अली भाई मुझे जॉब मिल गई है। वो मुझे समझ आ गई है कि उनको मेरी स्किल समझ आ गई है, मैं पसंद आ गई हूँ, मुझे जॉब मिल जाएगी। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, द वुमन गॉट लॉस्ट एंड आई वाज कॉलिंग हर और उसके बाद मेरी कॉल वॉइस मेल पे जा रही थी। मेरा पहला तो शक यही हुआ कि शायद उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो मुझे I kept finding her emails, WhatsApp messages, daily calls on her number or company's number. They said we cannot reach her out. ये वो सारा कुछ तो वो मुझे बंदी नहीं मिली। जब वहां से मेरी होप खत्म हुई, मुझे ये वाली जॉब मिली। That same day, that woman came back. And she said, Miriam, I'm so sorry, I was out of country, वहां पर WhatsApp नहीं चल रहा था। तो we are happy to give you the job. We liked you on the first day. I wanted you to get the job, but you were the third person we interviewed, and we wanted to interview two more people as well. So बस उनका जो कंपनी का पूरा प्रोटोकॉल था वो उन्होंने फॉलो करना था, और उस बीच they lost me, I lost them, I found a better job, I took it. Alhamdulillah for that. Alhamdulillah for that. Mariam, thank you so much for your time, yaar. I mean, no words to express के weekend निकालना, छुट्टी निकालना just for this. Truly humbled. Thank you so much. No problem. Guys, just wanted to wrap this up with saying कि Mariam just didn't move. Mariam didn't move with a backup plan. She moved with a blueprint. Because जब आप Yeah. अपनी वैल्यू खुद समझ जाते हैं, मार्केट भी समझ जाती है. This Yes. was the Still Loading podcast, unfiltered, global, gutsy. Till next time. Bye bye.